नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स क्यूज 31 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहा है। इससे पहले आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी ओणम। आज ओणम है, केरला का एक फेस्टिवल है। इसी की वजह से मैंने कल डेली करंट अफेयर्स क्यूज नहीं डाला था। तो ओणम के बारे में, Onam is a festival celebrated in Kerala. It is a harvest festival celebrated by Malayalis irrespective of religion. इसमें कोई रिलीजन नहीं है। सारे मलयालीज मतलब जो केरलाइट्स के रहने वाले हैं वो ओणम मनाते हैं हर साल। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट किंग महाबली whose spirit is said to visit Kerala at the time of Onam. Onam is a major annual event for Malayali people in and outside Kerala. देखो इसके पीछे कहानी है। इसमें क्या है, महाबली नाम के किंग थे जो केरला को रूल करते थे। तो ऐसे बिलीव करते हैं कि ओणम के दिन किंग जो है वो हर घर में आता है आशीर्वाद देने के लिए। पीपल ले फ्लावर कारपेट ट्रेडिशनली कॉल्ड पूक्कलम। पूक्कलम मतलब ये जो है जो फ्लावर से राउंड टाइप का बनाता है, इसको पूक्कलम बोलते हैं मलयालम में। इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस टू वेलकम द किंग एंड माउंट्स रिप्रेजेंटिंग महाबली एंड विष्णु आर प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड्स। महाबली विष्णु इनके नाम पे माउंट्स बनाते हैं मिट्टी से, ठीक है। स्नेक बोट रेसेस, ओणपट्टन, कालचक्कुला, पुलिकली, कैकुट्टिकली एंड अदर ट्रेडिशनल रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड फॉलोड बाय ए लैविश फीस्ट कॉल्ड सद्या। देखो स्नेक बोट रेसेस, केरला के स्नेक बोट रेसेस आपको पता ही होगा, देखे होंगे। नेहरू ट्रॉफी, बोट रेस, ये सब होता है। ये सब ओणम के टच में रहता है। ये सब ओणम के टाइम पे ये सब रेसेस नॉर्मली होता है। और ये बाकी सब जो लिखा है वो सब मलयालम वर्ड्स है। तो ये के गेम्स है, ट्रेडिशनल गेम्स विच आर प्लेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओणम, फॉलोड बाय ए लैविश फीस्ट कॉल्ड सद्या। खाना खिलाते हैं सबको केले के पत्ते में, तो इसको सद्या बोलते हैं मलयालम में। ओणम ऑल्सो मीन्स न्यू क्लॉथ्स फॉर द होल फैमिली, समचस होम कुक डेलिकेसीज ऑन बनाना लीव्स राउंडेड ऑफ बाय ए कप ऑफ स्वीट पायसम। इसके बाद पायसम, खीर, वो भी खिलाते हैं। तो ये ओणम के बारे में छोटा सा एक इंट्रो था। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the recently launched measurement and monitoring water supply under Jal Jeevan Mission, which of these statements are correct? Question number 2, with respect to the 17th Asian India Economic Ministers consultation held, which of these statements are correct? Question number 3, which of the following country government launched Agriota, a new technology-driven agricultural commodity trading platform that will bridge the rural farmers from India and the Gulf food industry? Question number 4, what is the name of a new freshwater fish identified in the Ganga by researchers from Kerala and West Bengal? Question number 5, with respect to the recent issued rules for administration in Jammu and Kashmir by the government of India, which of these statements are correct? Question number 6, which of these products has not been allotted geographical indication tax by the government of India as of now? Question number 7, with respect to the roll-on, roll-off road train service, which of the following statements are correct? Question number 8, what is the name of the next generation startup challenge launched by Ministry of Electronics and Information Technology recently? Question number 9, match lists 1 and 2 and select the correct answer using the codes below according to the festivals and the state to which it belongs. Question number 10, which country has named a 46-member High Council for National Reconciliation for Peace deal with Taliban? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। देखते हैं इसके आंसर्स और आप लोग कितने मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the recently launched measurement and monitoring water supply under Jal Jeevan Mission, which of these statements are correct? So our answer is 1 and 3 only. इसका मतलब है स्टेटमेंट 2, ए पानी समिति is created for operating the scheme at national level, गलत है। देखते हैं। The government of India has decided to provide smart rural water supply system under Jal Jeevan Mission, Digital India, आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड मेक इन इंडिया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्मार्ट रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम लॉन्च किया है। The Jal Jeevan Mission is being implemented in the country with the aim of providing clean tap water connection to every rural household by 2024. हमें पता है हमारे देश में फ्रेश वाटर की कमी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। इससे क्या क्लीन टैप वाटर कनेक्शन मिलेगा
हर घर को. Under the program 55 liters of water is to be provided per day on a long term basis. ठीक है. The smart measurement and monitoring is to be conducted through पानी समिति. एक पानी समिति बनाया जाएगा, इसके थ्रू ये इंप्लीमेंट किया जाएगा. अब देखते हैं पानी समिति क्या है. The Jal Jeevan Mission is being implemented under national level, state level, district level and village level communities. The पानी समिति is one operating at village level और ग्राम पंचायत level. तो हमारे स्टेटमेंट 2, ए पानी समिति इज क्रिएटेड फॉर ऑपरेटिंग द स्कीम एट नेशनल लेवल, गलत है. क्या है? पानी समिति इज वन ऑपरेटिंग एट विलेज लेवल. ये विलेज लेवल में या ग्राम पंचायत लेवल में होगा. इट कंसिस्ट ऑफ, देखो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 10 to 15 मेंबर्स है. 24% इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत से होगा, 50% वीमेन होना चाहिए, 25% में कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम वीकर सेक्शंस ऑफ द विलेज. राइट. The 73rd amendment of the constitution allows ग्राम पंचायत to manage drinking water supply. बहुत इंपॉर्टेंट है. और जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2000. क्वेश्चन नंबर 2. With respect to the 17th ASEAN India Economic Ministers consultations held, which of these statements regarding ASEAN are correct? So our answer is option B, 2, 3 and 4 only. इसका मतलब है statement 1, India is a permanent member in the ASEAN, गलत है. देखते हैं दोस्तों. एक न्यूज अभी आया था, एक मीटिंग कंडक्ट हुआ था इंडिया और 10 आसियान कंट्रीज के बीच में. वर्चुअल मीटिंग हुआ था कोविड-19 के चक्कर में. द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय कॉमर्स मिनिस्टर्स ऑफ 10 आसियान कंट्रीज. सारे आसियान कंट्रीज का कॉमर्स मिनिस्टर्स अटेंड किए थे. वैसे इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है. दिस इंक्लूडेड, देखो आसियान कंट्रीज में कौन कौन सा कंट्रीज है मैं बताता हूं. मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया एंड फिलीपींस. These leaders at the meet reaffirmed their commitment in the following. तो मेन एजेंडा पॉइंट्स क्या क्या था? फर्स्ट वन, टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. और तो है हर मीटिंग का रहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एंश्योर करना चाहिए हर कंट्रीज का. रिसिलिएंट सप्लाई चेन. सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन देखो, ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कमोडिटी है. एक चीज का भाई प्रोडक्शन हो रहा है, उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हर कंट्रीज के एमंग अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. इसको और अच्छा करने के लिए रिसिलिएंट सप्लाई चेन एक एजेंडा पॉइंट रखा गया. थर्ड वन, अनइम्पीडेड फ्लो ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड मेडिसिन. जितने भी एसेंशियल गुड्स है, मेडिसिन से, उसका फ्लो में कोई रुकावट नहीं चाहिए अमंग द कंट्रीज. राइट. द ASEAN India Business Council report was submitted during the meeting. The report had recommended to review the AITIGA. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. AITIGA क्या है? ASEAN India Trading Goods Agreement है. ASEAN कंट्रीज और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट है, AITIGA. AITGA is a free trade agreement between the 10 ASEAN members and India. एक free trade agreement है. It was signed in 2010. देखो, according to the agreement, partners have set a timeline to eliminate duties on as much goods as possible. देखो, free trade agreement का मतलब ये होता है import duties जो होता है उसको maximum eliminate करना. तो इसके लिए टाइमलाइन भी रखा गया है. Since the agreement was implemented, India's trade deficit has increased. देखो, जब से ये एग्रीमेंट लागू हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होते जा रहा है. ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट कुछ नहीं है दोस्तों, द अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ ए कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स. जब हमारा एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा ही होगा. तो हमारे साथ यही हुआ. Thus, India is demanding for a review. इसलिए इंडिया बोले कि रिव्यू चाहिए. According to नीति आयोग, trade deficit between India and ASEAN has doubled between 2011 and 2017. In 2011, it was $5 billion and increased to $10 billion in 2017. तो देखो, 10 साल में डबल हुआ है. The main reason for growing trade deficit is the low utilization of the FTA route by the Indian traders. जितने इंडियन ट्रेडर्स हैं, ये साउथ एशियन कंट्रीज के, तो जो FTA बनाया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया गया है, इसका लो यूटिलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा है. राइट. इसीलिए ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है बोल रहा है. द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट्स इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स. राइट. तो 10 मेंबर्स कौन कौन सा लिखा है? ASEAN is chaired by an annually rotating presidency assisted by a secretariat based in Jakarta, Indonesia. तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया का कैपिटल है, और इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होता है हर साल. राइट. तो प्रेसिडेंट चेंज होता है बेसिकली. इंडिया कुड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन ड्यू टू हर जियोग्राफिकल लोकेशन. को इंडिया का जो पोजीशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये साउथ एशिया में है और ये ASEAN का है, साउथ ईस्ट एशियंस का है. तो ये
ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं है। Nevertheless, फिर भी ऑन जुलाई 23, 1996 आसियान इंडिया को एक एडवाइजरी स्टेटस दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following country government launched AgriOTA, a new technology-driven agriculture commodity trading platform that will bridge the rural farmers from India and the Gulf food industry? तो आंसर इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखते हैं AgriOTA, ई-मार्केट प्लेटफॉर्म टू ब्रिड्ज इंडियन रूरल फार्मर्स एंड UAE फूड इंडस्ट्री। देखो दोस्तों, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड गल्फ कंट्रीज में ज्यादा है, राइट? तो इसलिए अब UAE गवर्नमेंट ने क्या किया, AgriOTA करके एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म बना दिया। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग होगा, राइट? ई मार्केट प्लेस अलाउज द फार्मर्स टू कनेक्ट विद UAE फूड इंडस्ट्री डायरेक्टली बाईपासिंग इंटरमीडियरीज। कोई बीच में नहीं है, डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट्स को मार्केट करो, ठीक है? एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया, जितने भी फार्मर्स हैं अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कर सकता है। In 2019, India exported more than 38 billion USD of agricultural and processed food products to UAE. एक statistics है, important है। The platform will help to improve global food security index of UAE. ये UAE का global food security index को help करेगा। देखो global food security index क्या है? India ranked 72nd out of 113 countries in global food security index in 2019. Singapore was ranked the first, followed by Ireland, United States, Switzerland and Finland. The index says that UAE, Israel and Singapore are the most impacted countries when it comes to natural resource risks and resilience against future food security threats. देखो, इसका मतलब है एक रैंकिंग होता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का, तो ये मेनली डिपेंड करता है जितना नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे कंट्री के अंदर। आप लोगों को पता है ये UAE वैसे गल्फ कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेस की कमियां हैं, क्योंकि उधर के मिट्टी डेसर्ट सोइल है और उधर इतने नेचुरल रिसोर्सेस होते नहीं है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में ये लोग थोड़ा पीछे था। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाएगा, इंडियन फार्मर्स को और अच्छी तरह अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करेगा और अच्छी तरह एक्सपोर्ट्स होगा। ये UAE को उनका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में और आगे आने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ ए न्यू फ्रेश वाटर फिश आइडेंटिफाइड इन गंगा बाय रिसर्चर्स फ्रॉम केरला एंड वेस्ट बंगाल? आंसर इज ऑप्शन सी, सिस्टमोस ग्रेशियस. Researchers from Kerala and West Bengal have identified a new species of freshwater fish from Ganga in West Bengal. देखो दोस्तों, अब ये ऐसे न्यूज़ 2-3 आ गया, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से नया आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, नया स्पीशीज फाइंड हो रहा है। तो फिश विच इज एडिबल मतलब खाने लायक, हैज बीन क्राइस्टेंड सिस्टमस ग्रेशियस फॉर इट्स थिन एंड कंप्रेस्ड बॉडी। क्राइस्टेंड मतलब नाम दिया गया, नामकरण हो गया। ग्रेशियस मीन्स स्लिम इन लैटिन। द फिश कैन बी कल्चर्ड इन इनलैंड वाटर बॉडीज, राइट? तो ये फोटो है। वाइल देखो, अभी जो 3 ऑप्शंस है, ये मैंने जो 3 ऑप्शंस डाले, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों रिसेंटली आइडेंटिफाई हुआ है। देखो, ग्लिप्टोथोरैक्स गोपी, ए न्यू स्पीशीज ऑफ कैटफिश वाज फाउंड इन मिजोरम्स कालाडान रिवर। तो कालाडान रिवर कहाँ है? मिजोरम में। गैरा सिंबाल बारेनिसिस वाज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश सिंबल बारा रिवर। ये दोनों भी रिसेंटली आइडेंटिफाई हुआ है। The team of scientists from Maharashtra and Kerala has discovered a new species of freshwater fish found in the Western Ghats and named it after a well-known professor of the Manipur University. The new fish genus is called Wycomia hira. मणिपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, इनके नाम पे महाराष्ट्र और केरला का कुछ रिसर्चर्स ने वेस्टर्न घट्स में के रिवर्स में एक फिश आइडेंटिफाई किया था, उनका नाम है Wycomia hira, राइट? क्वेश्चन नंबर 5, with respect to the recent issued rules for administration in Jammu and Kashmir by the government of India, which of these statements are correct? So the answer is option D, neither 1 nor 2. दोनों गलत है, देखते हैं। August 28, 2020, Government of India issued rules for administration in Jammu and Kashmir. It specifies the functions of Council of Ministers and Lieutenant Governor. देखो, देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। Lieutenant Governor, the executive functions of Lieutenant Governor include public order, police, anti-corruption और India services. ये सब Lieutenant Governor के नीचे आएगा। The critical issues that affect the peace of union territory or that will affect the minority community, scheduled tribe, scheduled caste or backward classes are to be submitted to the Lieutenant Governor. When there is a difference of opinion between Minister and the Lieutenant Governor, the decision of the LG is to have to be accepted by the Council of Ministers. The Council of Ministers or the Chief Minister will have no say in the above functions of Lieutenant Governor. तो जितने ये functions लिखा है, ये पूरा Lieutenant Governor का all and sole कंट्रोल में होगा। अब रोल ऑफ द प्रेसिडेंट,
When differences of opinion arises between LG and Council of Ministers, the LG shall refer to the President and shall act according to his advice. In above cases, LG will be empowered to pass directions till the President makes a decision. देखो दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा मैंने बता दिया, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एंटी करप्शन, ऑल इंडिया सर्विसेज और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटी, बैकवर्ड क्लासेस, ये सब के बारे में जितने भी इश्यूज होगा पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैंडल करेगा. और अगर कोई ओपिनियन का डिफरेंस है चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, पहली बात तो ये है, यही सब चीज़ों में, इन सब टॉपिक्स में अगर कोई भी डिसीजन एलजी ने ले लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ले लिया, तो ये बाउंडिंग होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर. अब इसमें एक रोल ऑफ प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं. प्रेसिडेंट का रोल क्या है? अगर ऐसा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एलजी शैल रेफर टू द प्रेसिडेंट एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस. वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट का राय के लिए, ओपिनियन के लिए कोई टॉपिक या सब्जेक्ट रख सकता है. इन अबव केसेस एलजी विल बी एम्पावर्ड टू पास डायरेक्शंस टिल द प्रेसिडेंट मेक्स अ डिसीजन. जब तक प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं देगा तब तक एलजी हैंडल करेगा. अभी देखो, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया सच एज लैंड रेवेन्यू, इंपोजिशन ऑफ न्यू टैक्स, सेल और लीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रिकॉन्स्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट्स. देखो, ये सब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्रिटिकल इश्यूज दैट अफेक्ट द पीस ऑफ यूनियन टेरिटरी और दैट विल अफेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये चीफ मिनिस्टर का काम बोला है. बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट उल्टा लिखा है. लेफ्टिनेंट गवर्नर इधर होना चाहिए था और चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इधर होना चाहिए था. ठीक है. द मैटर दैट ब्रिंग्स इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलजी इज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द अर्लीएस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस पे लाना चाहिए. ये आया था. क्वेश्चन नंबर 6. Which of these products has not been allotted geographical indication tax by the government of India as of now? So our answer is option D, Vechur cattle, a cattle breeding Kerala. देखो दोस्तों, GA टैक्स रिसेंटली पिछले 1-2 साल में जितने प्रोडक्ट्स को मिला है सब जाना बहुत जरूरी है. ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते हैं. सो देखते हैं, चारों ऑप्शन के बारे में लिखा हूं. ये कंधमाल हल्दी जो है आज के न्यूज़पेपर में आया था. क्या आया था कि हल्दी को GA टैग तो मिला और प्रोडक्शन भी हो रहा है, पर इनका सेल ठीक से नहीं हो रहा है. ठीक है. पूरा प्रोडक्शन में ओनली 20% अभी तक सेल हुआ है करके, और फार्मर्स को बहुत दिक्कत पहुंच रहा है करके हिंदू में आज एक न्यूज है. ठीक है. और कंधमाल हल्दी इन सदेन्स हिंडरलैंड इज फेमस फॉर इट्स टर्मरिक, ए स्पाइस दैट एंजॉयज इट्स प्राइड ऑफ प्लेस एंड इन एरे ऑफ क्यूजीन्स. खाने में यूज करते हैं. द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑल्सो स्टैंड्स आउट फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज. हील करते हैं बहुत जल्दी. ठीक है. और अरेस्टिंग अरोमा, इसका सुगंध भी अच्छा है. और सेकंड इज कड़कनाथ चिकन, ब्लैक फदर्ड. ठीक है, काला चिकन है. इज इन डिमांड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट बट ऑल्सो डू इट्स लो कोलेस्ट्रॉल एंड हाई प्रोटीन कंटेंट. इट सेल्स एट अराउंड 500 per kilo, विच इज अराउंड 5 times द प्राइस ऑफ नॉर्मल ब्रॉयलर चिकन. नॉर्मली जो होटल्स में मिलते हैं, हमें खाने को मिलते हैं, वो सब ब्रॉयलर चिकन है. ठीक है. ये जो है देसी चिकन है और इसका फर्दर्स ब्लैक रहता है. ये बहुत कॉस्टली भी है. क्यों? क्योंकि इसमें लो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है और हाई प्रोटीन कंटेंट है. राइट. इसका देखो दाम, देखो 500 रुपया पर किलो है. बहुत महंगा है. थर्ड वन इज वेचूर कैटल. वेचूर कैटल इज ए रेयर ब्रीड ऑफ बोस इंडिकस कैटल नेम्ड आफ्टर द विलेज वेचूर इन वैकम तालुक, कोटेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. केरला में कोटेन डिस्ट्रिक्ट में वैकम तालुक में हमें देखने को मिलेगा वेचूर कैटल. देखो, ये वेचूर कैटल भी इंपॉर्टेंट है, पर इसको GA टैग अभी तक मिला नहीं है. विद एन एवरेज लेंथ ऑफ 124 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 87 सेंटीमीटर. It is the smallest cattle breed in the world according to the Guinness Book of Records. देखो, smallest cattle breed है. Guinness World Book of Records में भी इसका नाम है. Next one is the Panchamritam is a combination of 5 natural substances: banana, jaggery, cougi, honey and cardamom. एक प्रसाद है बेसिकली. ठीक है. टेम्पल्स में दिया जाता है, प्रसाद है ये. पळनी मतलब तमिलनाडु में एक पळनी टेम्पल में पंचामृतम दिया जाता है. इनको भी GA टैग मिला हुआ है. Question number 7. With respect to the roll-on roll-off train service, RO-RO, which of the following statements are correct? So the answer is 1, 2 and 3. तीनों statements सही है. देखते हैं. RO-RO means roll-on roll-off, where loaded trucks are directly carried by railway wagons to their destination. The first ever RO-RO service in India was run by Konkan Railway. Konkan Railways passes through tough terrains of India. तो कोंगन रेल रूट कहाँ पे? वैसे कोंगन ये एरिया जो केरला वेस्टर्न घाट्स के ठीक लेफ्ट साइड में कोस्टल रीजन से अगर आप एक लाइन खींचोगे केरला से गोवा तक या महाराष्ट्र तक,
उधर ही कोंगन आपको मिलेगा, ठीक है। उधर एक रेलवे रूट है, कोंगन रेलवे रूट बोलते हैं। अब देखो रोरो सर्विस क्या है। देखो दोस्तों, बेसिकली यही है, ट्रक्स को गुड्स ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन ही गुड्स ट्रेन जो होता है, ट्रक्स को सीधा गुड्स के ऊपर चला देता है और लेके चलता है, राइट। तो इसको बोलते हैं रोरो सर्विस। इंडियन रेलवेज लॉन्च फर्स्ट privately operated as well as the longest run on road of service freight service between Bengaluru and Solapur through Jitendra Realty and Infrastructure। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेटली ऑपरेटेड है, राइट। कौन सा कंपनी है? जितेंद्रा रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। सर्विस इज करंटली ऑपरेशनल बिटवीन, देखो ये रोरो सर्विस ऑलरेडी है ऑपरेशनल का, कोलाड एंड वर्ना इन गोवा एंड कोलाड एंड सूरतकल इन कर्नाटका, राइट। Route will facilitate transport of goods laden tracks along the 682 किलोमीटर ट्रैक लेंथ। ये लॉन्गेस्ट भी है, 682 किलोमीटर पूरा ट्रैक लेंथ होगा। तो बेसिकली देखो, ट्रक्स के अंदर पूरा चढ़ा देगा गुड्स, उसमें कुछ भी हो, टेक्सटाइल्स हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी है, वो ट्रक के अंदर चढ़ाता है और ट्रक सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसमें ईजी है ना, देखो पूरा 682 किलोमीटर जो भी हो कवर हो जाएगा, फिर ट्रक सीधा उतर जाएगा। तो इसमें कोई क्रेन की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एक सर्विस है। द फ्री ट्रेन्स विल कैरी ट्रक्स लोडेड विद गुड्स ऑन फ्लैट प्लेटफॉर्म्स और वैगन्स, प्रोमिसिंग लॉजिस्टिक फर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट टाइम सेविंग ट्रांसपोर्ट। वो तो है। Bengaluru and Solapur sees about 7,000 trucks plying between them both ways, daily carrying about 1.20 lakh ton of freight। देखो 1.20 lakh ton of freight ट्रांसफर होगा। New service will be available between Neelamangala in Bengaluru and Balai in Solapur। New service will carry the truck itself, which can drive down where it wants after arriving at the destination। ये बता दिया मैंने, मतलब ट्रक जहां चाहे वहां लेके जा सकता है, उतारने के लिए कोई नहीं चाहिए, चढ़ाने के लिए कोई नहीं चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एक सर्विस। Question number 8. What is the name of the next generation startup challenge launched by Ministry of Electronics and Information Technology recently? So the answer is option B, Chunauti। IT Ministry has launched a startup challenge from which around 300 projects will be selected and provided with up to 25 lakh seed funding। 25 लाख तक सीड फंडिंग देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो सीड फंडिंग क्या है? सीड फंडिंग कुछ नहीं दोस्तों, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है, उसको सीड फंडिंग बोलते हैं। पर ये इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ सिक्योरिटीज दिया जाता है कंपनी, ठीक है, जो इन्वेस्ट करेगा उनको कुछ सिक्योरिटी देगा, उसको सीड फंडिंग बोलते हैं। The Modi government is looking to fund startups across sectors and help the projects right from incubation until they are off the ground in a bid to develop self-reliant India with regards to tech innovations। तो बेसिकली स्टार्टअप के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप करना चाहता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसके लिए पूरा 25 लाख तक फंडिंग देगा, जब तक वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, ठीक है, तब तक इसको सपोर्ट करेगा। टू दैट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री लॉन्च चुनौती फ्राइडे को ये कंपटीशन टू बूस्ट स्टार्टअप्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स स्पेशली इन इंडिया टायर 2 टाउन्स। जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सीरीज में नहीं है, कोऑर्डिनेट करेगा टायर 2 टाउन्स को, ठीक है। इसमें देखो बेसिकली स्टार्टअप्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये जो लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो आईटी कंपनीज के लिए मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। अराउंड 300 स्टार्टअप्स विल बी चूजन एंड विल रिसीव इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, स्टार्ट होने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, एडवाइजर्स, मेंटरशिप मतलब एक्सपर्ट से एडवाइजर्स मिलेगा, सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज होगा, एक्सेस टू वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग, इंडस्ट्री कनेक्ट एज वेल एज एडवाइजरीज इन लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, आईपीआर एंड पेटेंट मैटर्स। बेसिकली देखो एक स्टार्टअप, एक बिजनेस, एक आईटी स्टार्टअप शुरू होने के लिए जितना भी हेल्प चाहिए वो सब दिया जाएगा, यही लिखा है। गवर्नमेंट हैज earmarked रुपीज 95.03 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years टू फंड चुनौती। पूरा देखो पूरा 95.03 करोड़ रुपीज का चुनौती के लिए दिया गया है। विच स्टार्टअप लाइकली टू रिसीव सीड फंडिंग अप टू 25 लाख। मैंने बता दिया सीड फंडिंग कितना होगा, 25 लाख तक। अब सीड फंडिंग क्या है? सीड फंडिंग इज द कैपिटल पुट बाय एन इन्वेस्टर एट एन अर्ली स्टेज टिपिकली इन एक्सचेंज फॉर अ स्टेक इन द स्टार्टअप। मैं बता दिया आपको सीड फंडिंग क्या है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करता है पर कुछ सिक्योरिटी या कुछ स्टेक मिलेगा स्टार्टअप में, मतलब कुछ शेयर्स मिलेगा। ऐसा नहीं पैसे दे दिया हो गया ना, पैसे दे दिया और इसके बदले कंपनी में इनको ओनरशिप देगा, एक स्टेक देगा, नहीं तो कुछ सिक्योरिटीज देगा। Question number 9. Match list 1 and 2 and select the correct answer using the codes below according to the festivals and state to which it belongs. बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन डी, A4, P3, C1 एंड D2। बहुत बिहू आसाम का है, B3 ओणम आपको मैंने बता ही दिया था केरला का है, C1 हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और D2 याओशांग मणिपुर का है। देख तो इसके बारे में हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखो इसके बारे में छोटे मोटे लिखा हूँ, क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सा फेस्टिवल कहाँ का सेलिब्रेट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10.
And our final question, which country has named a 46-member High Council for National Reconciliation for Peace Deal with Taliban? So answer is option E, Afghanistan. Afghanistan's president has appointed a council for national reconciliation which will have final say on whether the government will sign a peace deal with Taliban. देखो दोस्तों, reconciliation का मतलब है support friendly relations. तो basically ये कह रहा है अफगानिस्तान प्रेसिडेंट एक नेशनल काउंसिल बना दिया फॉर रिकंसिलिएशन, मतलब तालिबान के साथ क्या स्टैंड लेना चाहिए ये डिस्कस करने के लिए, ये तैयार करने के लिए एक काउंसिल बना दिया. अब वैसे मैंने एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था लोया जिरगा मीटिंग के बारे में, एक इंटरनेशनल मीटिंग कंडक्ट किया था अफगानिस्तान में. ये मीटिंग का सबसे मेजर पॉइंट यही था, मेजर एजेंडा पॉइंट यही था, जो तालिबान टेररिस्ट को बहुत सारे ब्रूटल काम करने की वजह से जो इम्प्रिजन किया है, इनको फ्री करना है नहीं करना है. तो वैसे छोड़ दिया गया, फ्री किया गया. फर्स्ट बैच को ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले न्यूज में आया भी था, तालिबान प्रिजनर्स को अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने छोड़ा था. नहीं छोड़ा तो और ब्रूटल काम करेंगे करके इन्होंने धमकी भी दिया था अफगानिस्तान गवर्नमेंट को. तो बेसिकली और कुछ ब्लडी रिलेशंस नहीं चाहता है, इसलिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी यही सोचा इनके साथ थोड़ा सा रिकंसिलेशन हो जाए. ठीक है, इसके लिए अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गानी इश्यूड ए डिक्री मतलब ऑर्डर लेट सैटरडे एस्टैब्लिशिंग द 46 मेंबर काउंसिल. इसको लीड कौन करेगा? अब्दुल्ला लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, पर अभी वो गवर्नमेंट में है, राइट. तो इनको चेयर किया, ये लीड करेगा. काउंसिल इज सेपरेट फ्रॉम ए 21 मेंबर नेगोशिएटिंग टीम. ऑलरेडी एक 21 मेंबर नेगोशिएटिंग टीम है उधर तालिबान के साथ, ठीक है, नेगोशिएशन करने के लिए. इसको छोड़ के एक्सक्लूडिंग फ्रॉम दिस एक 46 मेंबर हाई काउंसिल बना दिया जाएगा. अब काउंसिल विल हैव द फाइनल से एंड विल अल्टीमेटली डिसाइड ऑन द पॉइंट्स दैट द नेगोशिएशन टीम टेक्स अप विद तालिबान. तो काउंसिल का फाइनल से होगा, ये फाइनल अथॉरिटी होगा, राइट. तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है. इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर कर पाए. आप लोगों के मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. अगर कुछ भी डाउट्स है, आपके कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. एंड अगर आपको ये वीडियो एक क्वेश्चंस अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. अगेन विशिंग यू ए हैप्पी ओणम.